Good afternoon, all the students. Good afternoon, ma'am. Please log in fast. Now, all the students, please pay attention. Are you ready for the class? Are you all ready for the class? Yes, ma'am. Good afternoon to all of you. What is wrong with you all? Why you are not answering? Why you all are not responding also? Ready for the class? Yes, ma'am. ma'am. Okay. Today is the concluding day for the chapter Indigo. In the previous class, I discussed about the MCQ. I discussed 30 plus MCQ in the class. I discussed the answer. Now in the today's class, I will discuss one long answer question and as many short answer question as possible. And today is the concluding class, and I want all of your attention on various points of the vital points of the story that we will discuss, and you all need to keep in your mind. Audible to all of you? Am I clear and audible to all of you? Yes, ma'am. All of you, am I clear and audible? Okay, I will discuss one very important big long answer question which will come under 5 marks category. ठीक है, वैसे तो तुम लोग का CBSE is taking lot many decision keeping in mind the pandemic. They have decided to take midterm exams based on MCQ. अगर time होगा तो then they will ask some subjective questions too. So what is required is preparation at your end. If you are prepared, और ये जो for preparation, ये जो everyday input है, that is also very important. So in this connection, I would request all the students to be very, very attentive during the class. And once the video is uploaded, make sure that you go through the video, as that is also a part of preparation. So you never know what sort of questions will be asked, what sort of tests will be taken on your side. So what you can only do is to be attentive and follow the teacher's advice. ठीक है? So I'll just move on. Listen to the first question attentively. If you have the copy and the notebook, please write it down. In the light of the story that you have read, Indigo, that is Mahatma Gandhi's leader of National Congress, whatever you have understood about the content of the story, one thing is very sure, that person who is fighting for something injustice, that person must be free from fear. Am I right? Do you agree with me, all of you? Freedom of fear? Yes, ma'am. Okay. Okay, all of you, please at least respond to my question, and whatever answer you know, please respond. Don't waste your time. ये unnecessary तुम लोग का अगर interest नहीं लोगे, it is sheer wastage of time. Interest नहीं आ रहा है तो you let me know very clearly. I will change my technique, I will change the topic, I will change my presentation, everything I will change. But let me know what is going on at your end, at your side. Anyway, to listen to the question. Freedom from fear is more important than legal justice for the poor. Question clear hai? Freedom from fear is more important than legal justice for the poor. Do you think the poor Indian are free from the fear after independence? You need to comment on this line with the story that you have read. Freedom from fear is more important
than legal justice for the poor. अब इसमें second part I have added to it. Do you think that these poor peasants or these poor Indians are free after independence? ये तो before independence की बात थी. Are they free after independence? Now you only have to discuss the vital points of the answer. Okay, I will start with the one of the most important point. पहले तुम लोग ये decide करो, freedom of fear is more important or legal justice is more important? क्या जरूरी है? दोनों में से which is more important? क्योंकि that will decide your presentation of answer. Freedom from fear or legal justice? Fast, जल्दी करो. Which one do you think is important? Freedom of fear? Freedom from fear. Freedom of fear. Okay. So then in that case, you will begin writing in the manner that definitely the emotion fear is a great hurdle in any kind of progress, be it legal justice, be it any kind of war. Fear subdues one's energy and power of thinking. So in that case, you rightly said that freedom of fear is more important than legal justice. ये first point हुआ, ठीक है? अब यहाँ specific तुमको होना होगा because we are especially talking about poor Indians, those Indians who have been subdued or whose generations are going under these powerful people. ऐसे लोग की हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं और आंसर में इन्हीं लोगों को रेफरेंस करना है, जनरल लोगों को रेफरेंस नहीं करना है, ठीक है? Let us proceed with the next vital point. Now, why do you think that what is the outcome of fear? One fear engrips someone, and what is going to happen? Everyone's apprehension of something going enormously wrong and dangerous. The moment fear comes in you, ये एक mind का psychic condition है that the person who is suffering from fear, he starts to think and develop his thought process in apprehension. Apprehension माने बाप रे ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा. ये जो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं और इससे डर हो जाता है कि what will happen if this situation arises. तो ये जो apprehensive हो जाते हैं, किस बात का apprehension? Something going to happen enormously wrong, बहुत बड़ा गलती, बहुत बड़ा dangerous, which is even fatal, जो कि even fatal करते हैं death को. तो ये एक very important point है कि whenever fear engrips, it tells the person develops or becomes apprehensive of something enormously wrong and dangerously fatal. ये एक तो हो गया. Now, second point क्या है fear का? Fear होने से fear of any kind of fear, what is going to happen? It harasses the man, the person, and it kills the capabilities, energies, power, happiness, and even the peace of mind. ये है once a person is engulfed in fear. ठीक है? अब आगे बढ़ो, लाइन चेंज करोगे, उस लाइन को नेक्स्ट लाइन को छोड़ दोगे, न्यू लाइन से स्ट्रेट यू विल बिगिन. नो इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ. जैसे एंटर मारते हो तो तुम्हारा लेफ्ट अलाइन सब चीज स्ट्रेट चलता है, ठीक उसी तरह से आंसर भी तुम्हारा लेफ्ट अलाइन एकदम स्ट्रेट होगा. उस लाइन को छोड़ दोगे, नेक्स्ट लाइन को छोड़ोगे, एंड देन यू विल बिगिन राइटिंग विद द न्यू लाइन. क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में तुमने एलाबोरेट कर दिया कि फियर इज मोर इम्पोर्टेंट टू इरेडिकेट देन लीगल जस्टिस, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फियर उस पर्सन के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती है, दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. Now, in the lesson, in the chapter Indigo, the poor peasant were very much afraid of the landlords. सबसे बड़ी बात कि बाप रे मालिक क्या कहेंगे. Even today, do you know? Even today I get a phone call from my native town
कि वो जो बूढ़े मालिक थे, मलकिनी थे, वो हमेशा घर में फोन करके दुआ सलाम लेते थे। आप तो कभी फोन ही नहीं करती हैं। सच वाज द फ्यूडल कल्चर कि ये लोग अपने अंदर जो भी इस तरह के पीजेंट्स थे उसके बारे में उसका हाल समाचार लेते थे, बट बैकग्राउंड में इसके फ्यूडल मेंटालिटी थी, फ्यूडलिज्म। हैव यू heard this term feudalism? तुम लोग सुने हो कभी? All the class? Please open your video. I want to check whether you all are in the class or you are somewhere else. Open your video. Can anyone tell me about something about feudal condition, feudal mentality? Have you heard of feudalism? Have you heard of feudalism? No. What is feudalism? Okay, let us proceed. नहीं answer करोगे तो what I am going to do? I will skip it out. नहीं बताएंगे तब what is feudalism? That altogether it is a part of history. पढ़े हो history में feudalism जानते होगे तो ठीक है. I am proceeding. Yes, Saksham. Ma'am, the domination of a group. Elite class on the poor class. ठीक है? This is called feudal mentality. या feudal. तो यहाँ पर first point तुम लोगों को देना है that the poor peasants were very much afraid of the landlords. ये जो feudal class थे, landlords जो थे, इससे ये लोग बहुत डरे हुए थे। किस बात का डर? कि अगर if they don't allow us to till the land, how will we eat? खाने का जो basic है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो इन लोगों को अपनी रोटी के लिए सबसे ज्यादा they were terrorized कि हम लोग भूखे मर जाएंगे, नहीं मिलेगा खाना। It is because of these landowners with whom we are getting, with these blessings that we are getting our livelihood, our bread and butter. So ये first point हुआ. Next, now you have to compare. The comparison is with legal justice, that is with the lawyers. So even the lawyers were charging high fee. तो अब तुम लीगल जस्टिस के लिए जाओगे तो वहां भी पैसे की जरूरत है, तो इवन द लॉयर्स वे चार्जिंग हाई फीस फॉर द केसेस। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ गांधी एट दिस टर्न scolded these lawyers for charging heavy fees from these sharecroppers into courts who were very economically backward. ठीक है, तो इन लोगों को डांटा। He advised them, और क्या एडवाइस किया? That it was useless to go to the court because peasants were crushed and they were fiercely and peasants were crushed and they were more fear-stricken. लॉ में, कोर्ट में भी जाने के बाद इन लोगों को और डराया धमकाया जाता था, जिसकी वजह से they were more subdued and more crushed. So the vital point was that they have to come out, emerge out of whatever situation strong and reciprocative and dominance about their rights and duties. तो इसके लिए कोर्ट को even गांधी जी put it aside, पीछे कर दिए. That is very important. तो ये तुम्हारा देखो, what I am trying to make you understand कि as you proceed in the long answer question, as you proceed with the answers, तो make it sure that you coordinate those points and then present it in a neat manner. First paragraph में I discussed, you only said fear is more important, legal justice तो secondary है, बाद में भी चलेगा। तो fear क्यों जरूरी है, इस पॉइंट को तुमने कन्विंस किया 2 पॉइंट दे करके। Then you changed the paragraph and then you came to the reference to the context जो तुम्हारे स्टोरी में है, और तब तुमने स्पेसिफिक होके बताया कि peasants जो थे they were fear stricken because of the condition of landlords, the prevailing landlord culture and the landlord system and the feudal system. इसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा they were fear stricken, and when they moved to court, another challenging task was the heavy fees. And then there also inside the court, they were subdued because they severely lack power, strength. देखो तुम्हारा लोग status क्यों पूछता है, तुम्हारी लोग salary क्यों पूछता है? Just to judge your strength, your power. बस
ये जो सैलरी है, ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है, दीज आर द पैरामीटर्स टू गिव यू, टू एस्टिमेट यू हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर। और उस स्ट्रेंथ के आधार पर तुमको रेस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए टाइम एंड अगेन हम तुम लोग को बार बार करिए, दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये जो रेस्पेक्ट जो मिल रहा पुअर लोग को, क्यों? बिकॉज दे आर सीवियरली डिप्राइव्ड ऑफ एकेडमिक नॉलेज, कोई भी थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल द क्लास? मेरी बात समझ में आ रही है? हम सीधे बोले जा रहे हैं। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉज लेंगे और तुम लोग को एक एग्जांपल देंगे। आज द एंटायर ग्लोब पर, वर्ल्ड पर लोग कहता है अमेरिका इज द एजुकेटेड कंट्री ऑन द ग्लोब, यूएस बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। बट इफ आई आस्क यू, किसी डिबेट में हम ये पॉइंट दे, कमेंट या गिव योर व्यूज या गिव अ स्पीच, और इंडियन के एजुकेशन स्टेटस से कंपेयर करो अमेरिका को, तो व्हाट यू विल फाइंड इट आउट कि अमेरिका में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। ये जो तुम्हारा इंडिपेंडेंस का हुआ वो सूडो था, वो पार्शियल था, वो पूरा से इंडिपेंडेंस हुआ ही नहीं, स्ट्रगल हुआ ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और after that industrial revolution, America badly needed skilled profession to look after their machines, to look after their industries. So what they did, they passed the scheme educate to all. और सारे सिटीजन्स को इन लोगों ने एजुकेट किया, इन लोगों ने ग्रूम किया, इन लोगों ने ट्रेन किया मशीन्स को हैंडल करने के लिए, मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ग्रेजुअली इन लोग को जो एजुकेशन मिला, उसी में से जो बेस्ट ब्रेन्स थे वो हायर एजुकेशन में चले गए, और बाकी लोग, सारे लोग कहीं ना कहीं दे ऑल गॉट एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्ट्रेंथ। बट हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक ये एकेडमिक स्ट्रेंथ नहीं आया है। और ये जो तुम स्किल कह रहे हो, जो तुम्हारे 10 फिंगर्स का, ये हैंड का, ये जो स्किल है, जैसे खाना बनाना हुआ, जैसे देयर आर सम अदर कोर्सेज आल्सो, तो इन दीज स्किल जो लेबर कॉस्ट होता है वो बार्गेनिंग के स्टेज पर आ जाता है। तो बार्गेन इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, एंड दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये तुम बैकग्राउंड नॉलेज में दिमाग में रखो, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अब लेट अस प्रोसीड एंड कम बैक कि Gandhi chided, Gandhi scolded these lawyers for charging exorbitant amount and subduing the peasants and not giving them legal right, and thereby simultaneously he also asked the sharecroppers not to go to the court and to move against the court and then go on for social justice. ऐसा उन लोगों ने कहा, ऐसा गांधी ने प्रपोज किया। This is because they were more fear-stricken while going to the court. Now, in this campaign of sharecroppers, Gandhi, when these officials, when these court came to know about Gandhi's action, they immediately asked Gandhi to leave. उनको एक official notice मिला to leave Champaran immediately. Now, the peasant came to know and blackened the town of Motihari. Now, blackened the town of Motihari means what? Are you getting my point? जब ही इनको पता चला कि इनके जो मसीहा हैं, दैट इज गांधी, इनके जो लीडर है, जो इनको जस्टिस दिलाने, इनके लिए फाइट करने आए हैं, ही वाज बीइंग गिवन सम नोटिस टू मूव टू लीव चंपारण, तो सारे पीजेंट्स ग्रुप में आए। ये पीजेंट्स का ग्रुप में आना एक सिंबॉलिक है दैट दे आर गैदरिंग यूनिटी अमंग देमसेल्व्स टू फाइट फॉर देयर राइट। ये सिंबॉलिक है, ठीक है, और सिंबॉलिक है अगेंस्ट दीज फियर स्ट्रिकन। ये फर्स्ट स्टेप तुम देखे, पूरी मोतिहारी ब्लैक हो गई पीजेंट से। इट इज द फर्स्ट वेलकम स्टेप दैट दे हैव स्टार्टेड देयर फीट अगेंस्ट फियर, अगेन यू कैन से इन फेवर ऑफ करेज। दे हैव स्टार्टेड टू पुट देयर फीट, और गांधी को सपोर्ट करने ये लोग आए। Next, the peasant came to know and they started to blacken the town of Motihari. The official battle was sought Gandhi's cooperation. और ये जो official battle between Gandhi and the system हुआ था, वो it was लेकिन taken after only with the support of these peasants.
वो पीजेंट का सपोर्ट मिल गया। एंड देन आफ्टर एन ऑफिशियल इंक्वायरी ऑन द कमीशन वाज सेट अप। तुरंत याद रखना, टाइमलाइन का इंपॉर्टेंट है, अब पूछ देगा कि उसके बाद क्या हुआ एमसीक्यू में। तो ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी है, कमीशन सेटअप किया, दिस इज वेरी वाइटल पॉइंट। जैसे ही पीजेंट्स आए तो ऑफिशियल इंक्वायरी सेटअप की गई एंड देन दे ऑर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड द अमाउंट टू द पीजेंट्स। और तुरंत लैंडलॉर्ड को ऑर्डर किया गया कि पीजेंट्स को इनके अमाउंट का रिफंड किया जाए। देखो 50% का डिमांड था, लेकिन ओनली 25% वेयर गिवन। Consequently, now with this getting back, ये जो वापस जो मिला, इससे क्या हुआ, दो चीज हुआ। 25% का तो फंड इनको मिला ही, बट प्रायर टू दिस, इससे भी बड़ा बात क्या हुआ कि इन लोगों को करेज हुआ कि दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट एंड दे कैन गिव अप देयर फियर। तो एक मनी मिला, दूसरा करेज हुआ, तीसरा एक और चीज हुआ, बहुत आसानी से बिना लीगल में गए हुए, बिना ऑफिशियल मैंने यू कैन से वायलेंस मेथड में गए हुए, गांधी जी सक्सेसफुली हेल्प्ड दीज लैंडलॉर्ड्स, दीज फ्यूडल पीपल टू सरेंडर देयर प्राइड। अपनी प्राइड को, अपने ऑनर को रखने के लिए गांधी जी ने इस मेथड से बाध्य कर दिया। इसलिए फ्रीडम ऑफ फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस। अब समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, Yes, अब ma'am. नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। यस सक्षम, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, ma'am. Are you getting my point? What to write, how to write, and what is should be the presentation? Yes, ma'am. लिख लोगे? Yes, ma'am. अच्छा, अब चलो थोड़ा सा अदर वे देख लेते हैं। अगर कोई है इस क्लास में जो कह रहा है नो मैडम लीगल जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो जरा सा अदर वे सोच लो, व्हाट माइट बी द पॉइंट्स, वाइटल पॉइंट्स, उसमें क्या तुम डिस्कस कर सकते हो। एक बात जान लो कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल आर फार फार मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम ऑफ दीज फियर। हमारे लिए अभी सर्वाइवल एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। रोटी नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? ठीक है, तो ये जो पुअर पीजेंट्स थे, इनकी जो फ्रीडम ऑफ फियर है, एंड देन आफ्टर सब्सिक्वेंट जो हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि आज भी क्या ये फियर हैव बीन रिप्लेस्ड, क्या ये इंदिरा गांधी जी का ये वन एक्शन आज 74 years later still is this fear has been eradicated from all these poor citizens? तुम लोग मानोगे इस बात को? मानोगे कि फ्यूडल सिस्टम, ब्रिटिश कल्चर, दिस लैंडलॉर्ड कल्चर, these today has been replaced by corrupt politician and self-serving bureaucracy. Do you agree with me? पावर ब्रोकर, Yes, ma'am. है ना? तो ये तुम लोग को आंसर में लिखना पड़ेगा कि आज भी ये फियर एग्जिस्ट कर रहा है। ओनली थिंग, हमारे ऊपर के जो पात्र थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो चेंज हो गए हैं। पहले ब्रिटिशर्स थे, फ्यूडल मेंटालिटी थी, हमारे लैंडलॉर्ड कल्चर था, हमारे लैंडलॉर्ड्स थे। आज वो क्या हो गया है, आज वहां पर करप्ट पॉलिटिशियन आ गए हैं, सेल्फ सर्विंग ब्यूरोक्रेसी आ गई है, पावर ब्रोकर्स, मनी लेंडर्स, ये लोग आ गए हैं जो हेवी अमाउंट ऑफ मनी लेंड कर। देख नहीं रहे हो चाइना क्या कर रहा है, नेपाल को मनी पर मनी लेंड कर रहा है, वैक्सीन पर वैक्सीन दे रहा है, एंड ही इज ग्रेजुअली गेनिंग मोमेंटम इन सराउंडिंग इंडिया एंड देयर बाय अटैकिंग इंडिया। वो एक अपना टीम तैयार कर रहा है। श्रीलंका पर भी सुने हैं कि इट हैज वहां पर चाइना के आर्मी के लोग दिखाई दिए हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उधर से अफगानिस्तान वगैरह में भी ही हैज स्टार्टेड टू रीच। तो सिचुएशन तुम्हारा फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लगता है कि जा रहा है। इफ थिंग्स डू नॉट कम अंडर कंट्रोल, इंडिया की स्थिति फिर से खराब हो जाएगी। एंड रिमेंबर, अगर होता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक वॉर नहीं, जर्मनी को तुम आज क्यों इतना डेवलप कंट्री कहते हो? क्योंकि जर्मनी में भी वॉर हुआ। एडोल्फ हिटलर के बाद जर्मनी बहुत टेक्निकली ग्रो किया, साइंटिफिकली ग्रो किया, हर इकोनॉमिकली ग्रो किया, हर तरीके से ग्रो किया। ठीक उसी तरह से अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल वॉर हुआ।
तो दैट वॉर कहते हैं कि वॉर ब्रिंग्स पीस, ये एक पैराडॉक्स है, ये एक अजीब सा लाइन है कि देयर इज वॉर देयर इज पीस। बट रिमेंबर कि वॉर को हम लोग बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं। हमारे यहाँ गांधी जी का लाया हुआ ये जो नॉन वायलेंस का जो प्रैक्टिस है, आई डाउट वेदर इट विल बी इफेक्टिव इन द मॉडर्न इरा और नॉट, बहुत डाउटफुल है मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स आर स्टिल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर। तुम्हारा टैक्स वाले अलग टेरर देते रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अलग टेरर देता रहता है। नाउ हु आर द सफरर्स? द पुअर लैंडलेस वर्कर, जिसके पास लैंड नहीं है, ये लोग सफरर है, who has still to work hard and to make both ends meet। आज भी इनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है and they have to make both ends meet। Now to the class, is my question clear to you? जो क्वेश्चन तुम लोग को बताए हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फियर और लीगल जस्टिस क्या इंपॉर्टेंट है, will you be able to write the answer? Yes, ma'am. तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या बात है, नहीं पढ़ने का मन है? मैम लिख लेंगे। लिख लोगे, बट याद रखना प्रेजेंटेशन, तुम लोग का जो वाइटल चीज हम चेक करने वाले हैं आंसर में, वो कोऑर्डिनेशन, फैक्ट्स, नो ग्रामेटिकल एरर, थोड़ी सी वोकैबुलरी, उसके बाद ओवरऑल प्रेजेंटेशन। अगर वो हमको मिल गया तो डेफिनेटली ट्रस्ट यू विल गेट फुल मार्क्स। मेरे पेन से फुल मार्क्स मिल रहा है, तो यहाँ से कहीं भी बाहर जाओगे तो यू नीड नॉट फियर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लेवल ऑफ आंसर। एनीवे, कम टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू, लेट मी चेक योर टाइमलाइन, you have to list the places that Gandhi visited between first meeting with Shukla and his arrival at Champaran। शुक्ला ने जो फर्स्ट मीटिंग की और फाइनली वो चंपारण आए, उस दोनों के बीच में उस where were the places where Gandhi went? सबसे पहले शुक्ला की मीटिंग गांधी के साथ किस प्लेस में हुआ था? मैम लखनऊ। वेरी गुड। नेक्स्ट, आफ्टर लखनऊ he went to अहमदाबाद। नो कानपुर, अहमदाबाद उसके बाद। हाँ यस मैम, कानपुर। Yes, कानपुर गए, then he returned to ashram near Ahmedabad, you can say Sabarmati, उनका जो आश्रम था वहां गए। Then after ashram, after Ahmedabad, where did he go? कलकत्ता। Calcutta। Then after Calcutta, मुजफ्फरपुर। पहले पटना में राजेंद्र प्रसाद को खोजे जो कि नहीं मिला, और उसके Yes, बाद ma'am, फिर पटना। he went to मुजफ्फरपुर and from मुजफ्फरपुर he went to चंपारण। तो ये जो Yes, ma'am। तुम्हारा सीक्वेंस है, इसको याद रखना और भूलना मत, कहीं हो सकता है कि बीच के ही सीक्वेंस से एमसीक्यू से क्वेश्चन आ जाए। नाउ फास्ट, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जितना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम तुम लोग से डिस्कस कर सकते हैं उसको आज हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? इंडिगो। Indigo। Next question, what did the British now want instead and why? So अब later on once the war started, what did the British want instead of and why? जब सिंथेटिक इंडिगो आ गया, अब इनके पास रियल इंडिगो का प्राइस कम हो गया, तो इन रिटर्न एट दिस पॉइंट व्हाट डिड द ब्रिटिश वांट from the landlord, or you can say from the peasants? Money back. The landlord wanted money as as compensation for being released the 15% of the arrangement। अब तो 15% का टैक्स देने का बात ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इंडिगो ग्रो ही नहीं करेगा, सिंथेटिक इंडिगो ज्यादा चीप है, तो अब नहीं ग्रो करने का 15% इन लोग को कंपनसेशन चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड ऑटोमेटिकली गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। तुम लोग को रीजन देना होगा अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द इवेंट्स इन दिस पार्ट द टेक्स्ट दैट इलस्ट्रेट गांधीजी's मेथड ऑफ वर्किंग, जो भी मेथड था, कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ दिस मेथड and link them to the ideas of सत्याग्रह? चैप्टर में से गांधी का जो मेथड है काम करने का, उसको तुम फाइंड आउट करो चैप्टर में से, एंड कैन यू लिंक टू हिज सत्याग्रह नॉन वायलेंस?
तो नन वायलेंस का वार नहीं, हम तुम लोग को बार बार बोले हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ ठीक से वर्कर्स का फाइट नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज में हुआ, देखो कितना अच्छा ग्रो किया। तो हम लोग नन वायलेंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो नन वायलेंस को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एट द टाइम ऑफ गांधी तुम देखे होगे चैप्टर में कि ही मेड द कोर्ट सबड्यू बिफोर हिम, सरेंडर बिफोर हिम, ब्रिटिशर्स सरेंडर बिफोर हिम, लैंडलॉर्ड सरेंडर बिफोर हिम। ये नन वायलेंस के ही मेथड से, कहीं पर ब्लडशेड नहीं हुआ। तो गांधी जी का जो पॉलिटिक्स था, the politics of Gandhi ji was intermingled with the day-to-day problems of the millions of Indians. उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो मिलियंस ऑफ इंडियंस के डे टू डे प्रॉब्लम से इंटरमिंगल थी, एंड देयरफॉर ही अपोज्ड अनजस्ट लॉ। एक तो लॉ हम लोग कहते हैं जस्टिस चाहिए, बट लॉ इज एक्चुअली अनजस्ट। So he was ready to court arrest for breaking such laws and going to jail. इतनी उनकी हिम्मत थी कि कोर्ट के अगेंस्ट में खड़े होकर जेल जाना वो ज्यादा ऑनरेबल समझते थे than to follow these unjust laws. तो इसका तुम्हारा लाइव एग्जांपल, प्लीज तुम लोग हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ रहे हो ठीक से, इस बात का लाइव एग्जांपल है तुम्हारा दांडी मार्च, that to break the salt law. That is a very good and a live example. And the resistance and disobedience was peaceful fight for truth and justice. ये जो तुम्हारा दांडी मार्च था सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में, ये एकदम पीसफुल था, फाइट फॉर ट्रूथ था एंड जस्टिस था। एंड दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। देखो थोड़ा सा वाइडर रेंज में हर चैप्टर को तुमको पढ़ना होगा और समझना होगा। Now come to the next chapter. Why did Gandhi agree to the settlement of 25%? ये हम तुम लोग से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी मेन प्रायोरिटी था पैसा, फिर सेकंड क्या क्या था लिस्ट में, पैसा, प्रेस्टीज और जो अननेसेसरी ये जो फियर था इन लोग के टेरर के वजह से, ये फियर को खत्म करना। तो 25% इसमें जो पैसा था, रिफंड था, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट की लास्ट पॉइंट थी। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था आप लोग अपना प्रेस्टीज को, अपने ईगो को सरेंडर कीजिए, एंड सेकंड पॉइंट था जो कोर्ट जिसको आप लोग जस्टिस करते हैं उसको रिवोल्ट करके बताना कि कोर्ट यूजलेस है वहां नहीं जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be the turning point of his life? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है सीबीएसई क्वेश्चन में कि why is Champaran episode to be a turning point of his political life, you can say, or of his life? Any point you can give? चंपारण एपिसोड किस पर एम कर रहा है? एट द एंड तुम कंक्लूड करोगे कि चंपारण एपिसोड पीजेंट्स को रिफंड कराए, पैसा रिफंड कराए, नंबर 1, पीजेंट्स को, फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स को फ्री कराए, नंबर 2, नंबर 3 जो प्रेस्टीज थी उनकी उसको सरेंडर करवाए। क्या था ये चंपारण एपिसोड का हाईलाइट? फर्स्ट में तुम लोग क्या रखोगे? निहारिका मैम फिर से रिपीट करिए ना एक बार। Gandhi considered the Champaran episode to be the turning point of his life. Now the question is why? ऐसा क्या हुआ था चंपारण में जो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो गया, एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया? बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट। प्रेस्टीज को खत्म कराना था। नो, प्रेस्टीज वो तो गांधी की तरफ था। उनकी जो पीजेंट्स जो फियर स्ट्रिकन थे, फियर के चलते कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, टू गिव ईज टू द सफरिंग्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पुअर पीजेंट, टू गिव ईज टू देम, रिलैक्सेशन। हाँ, अब कोई डर नहीं है हमको। तो ये लाइफ हमेशा डर डर के जीना तो कैसे होगा ग्रोथ? तो दैट इज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी, दैट ही सक्सेसफुली गिव द पीजेंट्स ease and comfort and make them relief from fear. He got, next point क्या था? He got spontaneous support of thousands of peasants. वो डरा हुआ peasant पूरी मोतिहारी को ब्लैक कर देता है। That means they had the courage to come forward and help Gandhi. तो ये जो गांधी को पब्लिक का सपोर्ट मिला, ये बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ। आप देख रहे हो कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन जब तक इनको सपोर्ट अदर वे नहीं मिलेगा
बहुत मुश्किल है, ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो गांधी को सपोर्ट मिला। देन गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज वेरी ऑर्डिनरी थिंग। ये थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी समय बहुत बड़ा विक्ट्री हुआ। देन ब्रिटिशर्स वुड नेवर हैव बीन किक्ड आउट। तो उसने अपनी इस विक्ट्री को बहुत ही छोटा सा विक्ट्री माना और यू कैन से बहुत ऑर्डिनरी थिंग माना। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो होता क्या है, सक्सेस मिलने के बाद लोग पांव जमीन पर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, he declared that the British could not order him about his own country. Very important point. वही एक पॉइंट निकला जिसमें से अब ब्रिटिशर उनके ही कंट्री में उन्हीं को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं just to leave about or to do things on their wish. Now they cannot do. And therefore, because of all these 3-4 things that has happened, he considered the Champaran episode as the turning point of his life. Is the answer clear to you? Yes, ma'am. Next question सुन लो, time, very little time is left. How was Gandhi able to influence lawyers? देखो आज की डेट में lawyers को influence करना बहुत difficult है। तो how was Gandhi able to influence lawyers? He directly asked him, देखो lawyers उनको बार-बार threaten किए, he will be sentenced to prison. They were advising him that he should go back home. But what did Gandhi say? Gandhi asked them about the injustice of the sharecroppers. तुम समझे इस लाइन का क्या मतलब है? Gandhi asked them about the injustice of the sharecroppers. अब हम तुमसे पूछे कि पढ़ाए हैं, क्या पढ़े हो? इन अननेसेसरी फिजिक्स क्लास में क्या हुआ, आज सिस्टम क्या है, तुम लोग ऑनलाइन क्लास में नेट कनेक्टिविटी नहीं। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आई एम सिंपली बॉदर्ड अभी पढ़ाए हैं, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गांधी सक्सेसफुली ब्रॉट द लॉयर्स टू देयर पॉइंट, कहां वो लोग अधूरे थे, इनकम्प्लीट थे और रॉन्ग थे। तो इट वाज दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर गवर्नमेंट। तो ये लोग जो थे कि they tried to explain, he concluded that such action on the part of the lawyer was a shameful desertion if he also go home without giving them justice. So he told them, Gandhi told the lawyers that he is ready to go to jail, ठीक है, for the sake of the peasants.